Rita Devi is making big fat rotis and jackfruit curry on her clay chula. It is still 7 am, but she's done with half her chores. Life has been benevolent lately, partly because of the various government schemes that make things less tough for her and her family. Rita lives with her family in Uttar Pradesh's Mehta village. It is a village that looks like it belongs to the 1900s with kacha makans everywhere. But with cement houses coming up on the road, slowly modernity is entering the village. When it comes to PM Awas Yojana, that remains one of the most ambitious schemes that have been implemented in the village, even though the implementation of it is wanting. So the colony that I'm in, it's an other backward caste dominated community with members of scheduled caste and scheduled tribe also living in this colony. They still do not have a pakka road leading to the village. If you see this house behind me, this house is still kacha. There's a thatched roof and it is a house made of mud, made of straw. For some reason, largely blamed on corruption actually, for some reason the family staying here has not been able to get a Pradhan Mantri Awas. ये यहाँ के बहुत सारे जनों के साथ हुआ है. जैसे कि अगर आप उस तरफ देख पाएंगे तो वहाँ पे एक इंदिरा आवास है जो आज से 25 साल पहले बना था. 25 साल पहले बना आवास आज सही हालत में नहीं है. It is in a dilapidated condition, but it is after paying off some bribe to the village headman that the sons of the woman sitting over there were able to secure houses under the PM Awas scheme. Now, why is the PM Awas scheme important? It earns villagers the dignity of life. When they are living in kacha houses, there is no light. You cannot have electricity in your house. There is no privacy. जब ये घर बन जाते हैं तो इसमें 2 कमरे बनते हैं, किचन मिलता है, सिलेंडर मिलता है, and the quality of your life gets infinitely better. So in the last 10 years of Modi government, there are certain schemes which are extremely popular, including Ujjwala. Even though people are not able to regularly fill their cylinders, Ujjwala remains one of the most popular schemes given by the Modi government to the villagers. The Swachh Bharat toilets, the village is largely ODF free, but there are pockets in the village which I will show you in this report that because of some problems with the sarpanch or the village headman have been unable to secure even toilets. So even in an open defecation free village, on paper, people have to go out in the open. Rita belongs to OBC Nai caste. Her husband Ramu is a ferrywala and goes on his bike from village to village selling cosmetics. Rita is currently happy in the pakka house that she lives in. She got this thanks to the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. A busy woman, she works hard all day, even freelancing for a Lucknow-based brand for some extra money. अभी पुराना कहाँ हुआ बता रहे हैं, यही दिन में बनत रहे 6 महीने पहले. तो जब आप पहले इस तरफ रहते थे, कच्चे मकान में रहते थे, तो क्या दिक्कतें आती थी कच्चे मकान में? अब दिक्कतें ही आती रहे, पानी बरसत रहा तो दिक्कतें आती रहे, और हवा बया रहा रहा तो छपारा उल्टी जाती रहे, और कमरा गिर गवा रहा है, मतलब पानी आवत रहा कमरा से. बस यही सब समस्या रहे. नहीं, जैसे कभी सांप आ जाए, चूहा आ जाए, फिर चूहा तो अब आवा करते हैं. चूहा तो बहुत घर में है. और सांप अब नहीं है. सांप कभी आया था घर में जब आप कच्चे घर में आवा रहे, मगर पक्के घर में नहीं आवा. नहीं, कभी रह रहे थे कच्चे घर में जब आता था? हाँ, एक ही बार आवा रहा है बस. अच्छा, फिर तब क्या हुआ था? तब बंगाली पकड़वा दिन घर आए. अच्छा, पर बंगाली तो सुबह आया होगा, रात भर क्या किया? रात भर बैठी रहे. कोई भी सो नहीं पाया? नहीं. क्या किया फिर जब रात भर सो नहीं पाए तो? रात भर ऐसे बतलावा कि नहीं.
और बतलावा कि थोड़ा मोबाइल में लूडो देखा खेला कि बस पूरी रात खत्म। तो ऐसे सांप बराबर में बैठे और इधर आप मोबाइल पे लूडो खेल रहे हो ऐसा? हाँ, बार बार टार्च लगा के अंदर देखित रहा है कि बैठे कि चला गया। पर वो बैठा रहा, गया नहीं? डर नहीं लगा? अब डराइत तो रहे, बार बार 2 मिनट में जाइत रहे देखा, यही वजह से तो सोच नहीं मिला कि सोई ना, मतलब सांप चला जाए कैसे। यही वजह से रात भर ऐसे जागा कि सब लोग। तो अभी आपके पास पक्का मकान है क्या? बचपन में भी आप ऐसे ही मकान में रहते थे या कच्चे उसमें रहना पड़ता था? कच्चे। क्या कैसा समय गया आपका बचपन में, थोड़ा बताओगे? बचपन में तो बता तो रहे, बहुत दुख उठावा, कच्चे घर में रहते रहे, खाए पिए कम मिलत रहा, वाड़े पहने के अच्छे नहीं मिलत रहे। और अब है तो खैर मतलब इतनी दुख नहीं है, मतलब जो नीक नकारा पहने वाड़े मिलत, खाए पिए मिलत है। पहले से बहुत बदलाव आ गया। आपके पिताजी क्या करते थे? बस यही बाल काटते हैं। अच्छा, बाल काटने का ही काम करते थे। आपके कितने भाई बहन थे? हमारे भाई 5 भाई हैं और 3 बहन। अच्छा, 3 बहन। और क्या क्या स्कीम मिली है आपके जिससे आपके थोड़ा जिंदगी में सुधार आया हो? बस और कुछ नहीं मिला, बस यही आवास मिली है और बस ये गैस चूल्हा है सिलेंडर वाला, बस ही। और आपकी खेती का पैसा आपकी मिला बस। सिलेंडर से कितनी मदद मिल जाती है? बहुत मिल जाते हैं, जैसे मिल गई, जैसे पैसा हो गया तो भरा लेना, नहीं भरा जैसे पैसा तो कबो कबो इस दिन आ जाते तो 1-1 रुपए का आफत हो जाती है। Her mother-in-law lives in a hut next to Rita's house. No PM Awas for her since she got one room under Indira Awas some decades ago. मकान है आपके पास, लेकिन आप बाहर ही कच्चे उसमें क्यों बैठे हुए हो? तो कहाँ बैठे दबी ना जाइए। कहाँ बैठे जाए? अंदर नहीं अच्छा लगता? अंदर का मरी का गिरे वाला है। अंदर का मरी अपन यह से डरवा लेता है, पन्नी अन्नी डाल लेता है, अपन यही तो गुजारा करता है। ऐसा कोई देखियो ले बे कि मतलब गिर रहा छपर हम अंदर को जाई। अंदर का गिर रहा है क्या? मतलब गिरे वाला है, मतलब सब छत छोड़ दे। हाँ, सब छत सरिया छोड़े हैं, पानी आवत है। बद चुगती है। हाँ, आटा तक का इसे बचाव काम हो जाते हैं। आटे से बचाते हो? अब आटा धरा, चावल धरे तो कहाँ रखा, सब खराब हो जाता। हाँ, चुगते हैं। तो अब आप बताओ, आप क्या काम करते थे? पहले मालिश का काम करते थे? हाँ, बहू को जाते, जैसे को हाय बहू रे बुलावत तो चली जाते। मतलब जब कोई बुलाता है तब जाती हैं, ऐसे घर में रहती हैं। तो मालिश का काम अभी कम हो गया है? बहुत कम होगा। क्यों, क्या हो गया? अब जब बच्चे नहीं है तो मालिश करे को बुलाई? सिर्फ 2 ही बच्चा हुई है? हाँ, और का। Other schemes such as the Swachh Bharat toilet have also given women like Rita more dignity to live with. According to the United Nations, 270 million people were lifted out of multidimensional poverty between 2005 and 6 and 15-16. That decade of upliftment out of poverty, helmed by Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, made way for a decade of aspiration for India's rural population, coupled with a promise of quote-unquote "achhe din." Villagers over here allege that it is because of corruption at the panchayat level that even though schemes for their betterment are available, they are unable to avail them. But things are changing. With various schemes that the Modi government introduced, villagers are now being able to move away from the 100 days of employment guarantee of Manrega towards better employment opportunities. So at the end of the day, they do not get their desired wages. दिन का 250 रुपये आपको मनरेगा में मिलेगा, लेकिन आज अगर ये लोग शहर में जाके मजदूरी करें, चाहे वो बोरियां उठाने का काम हो, चाहे वो घर बनाने का काम हो, चाहे वो फेरी लगाने का काम हो, तो दिन में 300 से 500 रुपये का वेतन बनता है, जो कि एक ही दिन में, उसी दिन में खाते में आ जाता है। Rural household expenditure more than doubled between 2011-12 and 22-23. The trajectory of Rita, Ramu and others offers a glimpse into how rural lives have changed over the past decade and what voter sentimentality is going to be as they line up to press the EVM button this general election. अब एक जन इनका साथ में लेके जाओ वहाँ पे खेत में करा के लाओ, फिर आओ वापस घर। ऐसे अपन बच्चे उठान बल्टिया चले गए, अकेले भी करे आए।
और खेत में रात बिरात लग जाता है तो उनको ले जाना पड़ता है खेत बाहर ले जाने के लिए। जैसे कई के गेहूं बाए हैं, कैसे कोई खेत में हल्ला भी करते हैं, धंधा में हगने में बहुत खराब है। वही नाच खाओ वही में हगो तो कितना खराब लगता है। इसीलिए मतलब लाइटिंगे बनवा दी जो भी मतलब गाँव में हर घर में लाइटिंग इसीलिए दी गई है कि कोई खेत में मतलब अनाज में ना लाइटिंग करो। कितनी सुविधा हो गई। और उससे ये भी आत्मसम्मान की भी तो एक बात होती है उसमें क्या कि खुले में नहीं करना अपना, सही प्राइवेसी में। मगर जब नहीं दीदी जी है कहीं जगह तो आदमी मजबूरन में करना तो पड़ता ही रहे। मगर जब से बन गई तब से अब कोई मतलब बहुत तरीके के बने सब लोग घर में ही लाइटिंग करते हैं। Rita has decorated her house with danglers fashioned from paper cups and plastic straws. She even has been able to put together a living room for her, which had always been a dream. She has done this by stitching together an old sofa that had been eaten into by rodents. And she also bought an old television set just for ₹1,000. A lot of progress in Rita and Ramu's life has come via various benefit schemes. ₹2,000 received as Kisan Samman Nidhi every quarter helps them buy necessities for home. Even annual money released for buying uniforms has made the family proud. Their children do not have to go to school in tattered clothes. But awareness and mobility with the help of a transport played a crucial role in Ramu being able to bring these benefits for his families, and so did corruption. इसमें दौड़ भाग तो करनी ही पड़ी है हमको। उसके बाद हमको मिला था। क्या दौड़ भाग हुई? थोड़ा दौड़ भाग का हमारा कट गया था आवास, उसमें हमने दौड़ भाग किया। ये भैया जो है हमारे साथ जाते थे, दौड़ते थे। हमने 1-2 महीना दौड़े हैं उसमें। कहाँ गए? ब्लॉक गए। ब्लॉक गए। वहाँ पे क्या क्या हुआ? फिर किस किस से मिले? क्या क्या कागज लगे आपके? अब कागज तो हमका नहीं याद आ रहा है क्या क्या कागज। हाँ, पासबुक है, आधार कार्ड, ये तो लगा था। और कितना टाइम लग गया आपको ये मिलने में? 1.5-2 महीना हम दौड़े। उसके बाद हमको मिला था ये आवास। पहले आपको अपात्र बोलते थे? जी। क्यों? अब राम जाने काहे के लिए हमको अपात्र बोला गया था, जबकि तो हमारा मकान गिरा हुआ पड़ा था पूरा। और मैडम जी जब इंक्वायरी करने आई थी तो मैडम जी को हमने दिखाया था, गुम्मा रख के ले गए थे। अंदर पानी ही भरा था, हमारे घर में इतना पानी गिर गया था। पीछे कमरा था वो भी गिर गया था। और तब भी उन्होंने हमको जो है ये कर दिया कि अपात्र कर दिया। क्योंकि आपके माँ बाप को सालों पहले इंदिरा आवास मिला था। हाँ। अच्छा। तो और फिर उसके बाद जो है हम फिर पैरवी किया। पैरवी करने के बाद तब भी सुनवाई नहीं हुई हमारी। फिर उन्होंने जो है हमसे कहने लगे कि मतलब आप जो है पैसे दो हमें तो हम अभी कर देंगे। तो हमने कहा दीदी जी हमारे पास पैसा तो नहीं है, और पैसा होता तो दौड़ते काहे इतना। उसके बाद जो है हमारा काम वो बाद में एक और दादाजी हैं, उन्होंने यहाँ आए, उन्होंने पास कर दिया था। उन्होंने अच्छी रिपोर्ट दिया था। आए तो बहुत लोग थे लेकिन उन्होंने सब रिपोर्ट सही नहीं दिया था। कितने सालों तक आते रहे लोग यहाँ पे? कितने साल नहीं, हमें लग रहा है 1-2 महीना आए हैं। इंक्वायरी 2-4-5 हुई हैं। Not everyone in Ramu's village has the mobility or awareness to demand access to schemes. The touch of progress hasn't brushed against such families. A colony of Lodhi OBCs in Ramu's Mehta village. One such person is Bitti Devi, who does not have a Ayushman Bharat card and her husband is suffering from liver and kidney failure. She might not be able to save him. इलाज फ्री में मिल रहा है? इलाज नहीं मिल रहा। क्यों? क्या हो गया? आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया आपने? नहीं बना। क्यों? क्या दिक्कत आई? जब कार्ड वो मांगे ना, वो राशन कार्ड भी मांगे, जब नहीं राशन कार्ड बना है तो कहे न बन पाई। आपने गांव के प्रधान से बोलने की कोशिश करी कि हमारा बनवा दो? हाँ, और राशन कार्ड बोली है कि कहन कि साइड बंद है, नहीं बन पाएगा, ये है वो है, दुनियादारी इतना बता दें।
और आग गए सिलेंडर के प्रधान के पास गए तो वे कहन कि आओ हमारे घर है, तो हम उनके घर खुद गए, वे उनकी मेहरिया बुला के ले गई। तो हम कहन मामा हमका कुछ करो, मतलब न सिलेंडर देवा न राशन कार्ड बनवा, तो कहन तुम्हारा सिलेंडर हुआ पुरवा के वहाँ बाहर जा रहा है। अब चाहे हंसवन कहें चाहे जैसे कहें हुए तब, हाँ मतलब हमारा पूर्वा गांव है मैका, वहाँ जा रहा है आपका? हाँ यही तना कहनी है। तो हम फिर जब से उनके पास नहीं गए तो अपने यहाँ कोटेदार मामा से कहा, तो वे कहन कि साइड बंद है, रुक जाओ तुम्हारा काम फिर जब साइड खुली तब करवाएंगे। हम कहन करवा दो, तो कहन चलो ठीक है, जब साइड खुली तब बताओ। तो अभी तक नहीं बना है। ऐसी वैसी बताओ, हम मांग के मांग ले के खा रहे हैं, कुछ भी खाया नहीं है। सब तो चाहिए पूछ ले हमारे घर में मई कैसे आए हैं, जब उस दिन है तब सब कुछ लाए हैं। अब हमारे पास 2 बच्ची हैं शादी करे वाली हैं, एक लड़का भी है और 15 साल की लड़की है। बा महतारी में पढ़ा रही हैं और पढ़ावे तक कर नहीं, बताओ 1 रुपया है। Even Bitti's relatives cry that they haven't got access to PM Awas or other welfare schemes of the government. Corruption again plays a role in the families being denied access to welfare schemes. They cry about the problems faced in a kacha house. अरे बड़ी मुश्किल, बरसात में जैसे पानी उबलता है सब चीज़, तो रात में उड़ के बैठना पड़ता है, कहीं बैठने की जगह नहीं, और रात को उठ के छत पे चढ़ के मतलब दाबने जाना पड़े, ये चीज़ें बहुत मतलब मुश्किल लगती है। और ना बैठने की जगह, बच्चे सो नहीं पाते हैं, उठ के बैठते हैं, बस बैठे रहते रात भर, सब पूरा जो है गिरता चूता है। अब वो जो है बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, ना सो पाते हैं, ना खाना बना पाते हैं, कहीं बैठ के बना लें। In Taura, a village 10 kilometers from Mehta, the situation is even worse. We reached Taura after we met Balram, another ferrywala who repairs zippers of bags, pads, etc. He was ferrying in the same village as Ramu. Balram cycles from village to village, covering up to 15 every day, and takes home a paltry rupees 200 to rupees 300 home, and that too on a good day. तो ये बैग का काम करके क्या पैसे कमा लेते हो? वही 250-300-400 मिल जाता है। तो रोज का हो जाता है? रोज का हो जाता है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन कमाई ना हो? नहीं, कोई ऐसा दिन ही चला जाता है, कभी कुछ ऐसे ही लौट आते हैं, कभी काम धंधा होता है, कभी नहीं होता है। कोई लगी हुई थोड़ो कि हम जा रहे हैं तो वहाँ हमारी नौकरी लगी है तो हम वहाँ से चले आएंगे, जाएंगे तो पाएंगे। कभी कोई 4-4, 6-6 गाँव ऐसे चले जाते, छोड़ देते, मिलते नहीं, तो इसीलिए प्रॉब्लम होते, यही चलते सारा दिन, हमारा यही हमारा काम है। तो ये जो आप काम करते हैं, क्या ये आपके गांव में सब लोग ये काम करते हैं या दूसरा काम? नहीं, सब यही लोग काम करते। चैन ही महीने का चैन बनाते हैं, कभी बाल्टी वाल्टी जो पहले बुजुर्ग को बनाते थे, लोहे की बाल्टी, पीपा, बक्सा बनाते थे, तो वो काम सब तो रह नहीं गया, अब तो सब खत्म हो चुका है। लोहे का सिस्टम ही खत्म हो गया, जब से प्लास्टिक चली गई हैं तो इसका सिस्टम ही खत्म हो चुका है। Gandhinagar area of Taura is characterized by abject poverty. There are no open fields or the slow pace of a village life here. The place looks like an overcrowded urban slum. Kacha houses are everywhere, and from huts of straw, 4 to 5 children can be seen emerging without clothes on. These are claustrophobic huts covered by gunny bags, making them extremely hot, tiny places to live in. People cry and clamor for colony, a PM Awas, but alleged caste discrimination does not let them access any scheme. इस झुग्गी में इसमें हम लोग 6 लोग रहते हैं। 6 लोग। तो आपने कभी प्रधानमंत्री आवास के लिए कोशिश नहीं करी मिले? उनसे कि मैंने मैडम क्या बताया था, मैंने फार्म में डालो, इससे कोई फार्म भर दो, तो कोई योजना आती भी नहीं है। आप सब पहले समझो, पंडित लोग पहले खा लेते हैं यहाँ पे। भाई यहाँ तक पहुँचने में नाहूस साइड हो जाता है, यहाँ तक तवरा तक तो कोई नियम में नहीं आना है। खरंजा कॉलोनी कोई सिस्टम नहीं होता है, बीच में ना वो लोग को बोल रहा है। पर आपने भरा है फॉर्म? हाँ, अभी बीच में फोटो खिंचाए थे, आए थे ना खींचने वाले लोग कॉलोनी के लिए मैडम, तो वही मालूम भरा था, तो क्या किया जाए। अब तब नहीं आ रही तो अब क्या मजबूरी है हमारे पास, अब रहना पड़ेगा। बच्चे भी छोटे छोटे, सर अब क्या किया जाए। तो रिजेक्शन आया है, कोई सर्वे करने आया हूँ यहाँ पे? नहीं, सर्वे तो आए हैं, लेखपाल भी एक बार आया था, यहाँ पे सेक्रेटरी साहब भी आए थे, लेकिन मैडम वही है कि जब सुनवाई नहीं तो क्या किया जाए। काली या स्टे यहाँ ये नट बढ़िया बोलते हैं यहाँ पे। सिलेंडर मिल रहा है? सिलेंडर हाँ मिला था सर,
एक बार मिला था? एक बार वही मोदी सरकार में मिला था जो आप बता रहे हैं, आपसे बता रहे थे। उसके बाद ना पैसे है ना पैसे हो तो भरा लेके आ गया था। गरीब आदमी सिस्टम बच्चों इस समय सरकार की तरफ से क्या स्कीम मिल रही है? हमें कुछ नहीं मिला सर, जब से मोदी भी आया कुछ नहीं मिला हमें, खाली सिलेंडर छोड़ के आपसे विश्वास कर रहे हैं। Balram used to walk from village to village, often sleeping on an empty stomach. The cycle that he has right now is an acquired luxury. He found it junked and got it fixed to ferry on. And with crooked feet, destiny has been cruel. He fell from a tree when he was a child. That brought him permanent spinal injury. He is currently living in his brother's house, a single room built in 2001 under the Indira Awas scheme. The brother works as a cobbler in Lucknow. Since Balram needs money to buy only food, he often repairs bags in barter for things such as flour, vegetables, and on good days, pulses. Whatever little she could acquire in her 35 years of existence, Balram's wife, Suman, has contained in bags she picked up from other people's trash. It includes her ration card, job card, and some other clothes for winter. तब तो सभी चैन वैन बनाते हैं और सब लोग चैन वैन बनाते हैं। तो ये बड़ा मतलब मुनाफे वाला बिजनेस है, सब लोग सिर्फ यही काम क्यों कर रहे हैं? ये नफ़ा वाला बिजनेस नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, इसमें खाली परिवार भी चल सकता है, परिवार अपना चला सकते हैं, परिवार अपना मतलब भूखे नहीं सो सकते, जैसे एक टाइम पे गए तो अपना रोटीदार रोटी का चल जाता है। अच्छा, अब मुझे बताओ ये पीछे जो घर है ये आपका है? ये हमारे भाई का है। आपका घर का है? हमारा घर पीछे था, जुग्गी हमारे पास लगी थी, वो जुग्गी गई टूट, उसमें सांड घुस गए थे तो टूट गई थी, तो पड़ी है। तो अब सोच रहे कि अभी नहर वहर आएगा तो अपना कटवाएंगे। अच्छा, तो दोबारा आप खुद बनाएंगे? फिर कैसे अपना बनाते हैं वो? उसको काट के जाएंगे, जंगल जाएंगे तो उसको घास काट के लाएंगे, फिर बांस लाएंगे, फिर टटेल लाएंगे, काट के फिर उसको बांधते हैं रस्सियों से, बांध के तब उसको बनाते हैं, फिर तिरपाल डालते हैं, फिर बोरी डाल के तब उसमें रहते हैं। तो ये हर साल का काम है आपका? हर साल का काम होता है। और इसमें ये वाला घर बनाने में कितने पैसे लग जाते हैं, कच्चा घर बनाने में? कच्चे घर में बनाने का 2,000 रुपये तक लग जाता है, 2-3 हज़ार रुपये लग जाता है। किस चीज़ में खर्चा आता है आपका? उसका पन्नी का आता है, बांस का खर्चा आता है, और जैसे काम पे नहीं जाते तो उसी में वो भी उसमें जैसे नुकसान हो उससे जाता है। नुकसान हो जाता है। और ये हर साल का नुकसान हर है? साल का नुकसान होता तो आपके भाई को ये आवास जो मिला ये कितना पुराना है? है। ये कम से कम 25 साल का होगा। और आपको क्यों नहीं मिला घर? अब हमने कोशिश करते हैं कि घर हमको मिल जाए, तो जो कहते हैं तो जाते हैं तो कोई करता ही नहीं, कराते ही नहीं, सब मना करते कि चलो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो होता ही नहीं है। अब मुझे बताओ कि राशन जो मिल रहा है उससे कितनी मदद हो पा रही है हमारी? उससे मदद है कि 1 महीने में मिलता है राशन, तो 20 किलो मिलता है, तो 20 किलो में 5 आदमी हैं तो 5 किलो में कितना हिसाब से चल जाएगा। आपका वो काम का है 8-10 दिन के लिए, जो मोदी सरकार में मिलता है 8-10 दिन के लिए राशन, मतलब बचत हो जाती है हम लोगों के लिए, अपना वैसे में सब कुछ चल जाता है। तो कितने दिन चलता है वो राशन? बस भी मान के चलो 6 या 7-8 दिन से आगे नहीं चलता है, 20 किलो तो 8-7। उसके बाद कैसे गुजारा करते? फिर उसके बाद फिर यही साहब गली गली चैन बनाना, घूमो जो अपना जाओ तो किसी से अपना काम किया तो किसी से आटा ले लिया, किसी चावल ले लिया, किसी गेहूँ ले लिया, ऐसे लेकर अपना गुजारा चल जाता है। नहीं काम पाते हैं तो मांग भी लेते, भैया खाने के नहीं, छोटे छोटे बच्चे भूखे रह रहे हैं, दिक्कतें हैं, तो कहते कोई ना कोई तो भगवान हो ही जाता है, तो कहते लो भैया हमसे ले लो, भैया हमसे ले लो, तुम्हारे पास खेती बाड़ी तो है नहीं, कोई चीज़ तो है नहीं। आप आदिवासी हाँ तो तो आप पहले के बारे, बचपन के बारे में बताओ। क्या यहाँ आसपास जंगल हुआ करते थे? क्या आप शिकार करने जाया करते थे, लकड़ी लाने जाया करते थे? ये साहब बहुत बड़ा जंगल था। इस जंगल में सियार थे, लोखड़ी थे, खचुही थे, मूस थे, जंगल था, बहुत बड़ा जंगल। तो जब बारिश वारिश होते तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो पीढ़ियों को पीढ़ियाँ थी, वो लोग यही काम करते थे। तो जब कोई चीज़ का मिलते नहीं था, ना कोई चीज़ मिलता था, तो जब कोई समय नहीं आता था तो खचुई, जो खचुई होती है खचुई, वो मतलब भूंज के खा लेते थे। सियार मार के लाते, कछुआ, वो भी सियार मार के खा लेते थे। और चूहा जो खनते उसको मार के खा लेते थे। तो जब आदमी के पास कुछ रहे ना, तो आदमी मजबूरी के लिए, पेट भरने के लिए तो खाने पड़ता ही था। तो उसी से हम भी लोग वही चालू कि आज भी हम लोगों के लिए यही चीज़ का। तो आप मूसाहार हैं? हाँ मूसाहार, आज भी खाना पड़ता आज है? भी खाना पड़ता है। किस समय है? कौन से ये साल में कब ऐसा ये समय साल आता में है ऐसा जो होता है जब बरसात होती है, आषाढ़ में, तब का होता है।
तो जब हम लोग होता जब बारिश होता तो घर में गेहूँ आटा चावल नहीं रहता है, परेशानी होती तो कहीं ना हो तो पकड़ लाओ तो इनका भूंजी खाओ। घर में गेहूं आटा चावल क्यों नहीं होता उस समय? उस समय जब कमाई ही नहीं होती, बारिश होती तो किसके दरवाजे जाओगे? तो कहेंगे भैया बारिश हो रही है, कहाँ चले आ रहे हो उसे, वो जाओ घर में। अब पानी रात दिन गिर रहा तो कहाँ जाएंगे, दिक्कतें होती। तो जब मोदी सरकार मिलता है तो जैसे शाम को बनाए तो सुबह नहीं, सुबह बनाए तो शाम को नहीं, तो ये कारण से नहीं, इसे अपना गुजारा चल जाता है। तो फिर उस समय आप चूहा पकड़ने कहाँ जाते हो? बच्चों को भी भेजते हो? नहीं, बच्चे नहीं जाते, हम ही 2 जने जाते हैं। तो ये वहाँ पानी में कहाँ घुस पाई हैं, ये सब जड़ा जाए हैं, हम लोग अपन गए अपन चले आए। According to data from the Block Development Office, Bichia, 86 houses have been completed under PM Awas in Taura, while 40 have been completed in Mehta. The print reached Chief Development Officer of Block Bichia, Prem Prakash Meena, to discuss the problems villagers in this block voiced. But the CDO refused to believe caste-based discrimination could lead to problems in dissemination of schemes. Poor standards of living stunts the interpersonal relationship of Balram's family. They don't have outings and can't recall joyful evenings. क्या बात करते हो? अगर कभी मम्मी पापा के साथ बैठ के बात करने का भी टाइम मिलता है? जी मैम मिलता है, पर पापा चल जाते फिर पे मम्मी से मिलता है टाइम, तो मम्मी से बोलते तो मम्मी कहती है कि बेटा जब अपने पास सब कुछ हो तो तुम्हें पढ़ाए लिखाए, फिर तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करे। मैम इस सब के अलावा क्या बात करते हो मम्मी से? मम्मी से कहते हैं कि मम्मी आप लाओ हम कोई काम कर ले, तो मम्मी कहती है नहीं काम ना करो, काम करने की अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, और इसीलिए मैं काम वाम नहीं करने देती। काम वाम के बारे में नहीं, मम्मी से वैसे ही कभी बैठ के कुछ गप्पे वप्पे मारे, आसपास के बारे में बात करें, ऐसा करते हो? नहीं ऐसा मैम कभी नहीं करते। और किसी भी चीज़ की बात नहीं होती? नहीं। दोस्त हैं? जी मैम। दोस्तों से ये सारी बातें हो जाती हैं? यस मैम होती हैं। दोस्त कहते हैं कि बेटा क्या करोगे दोस्त, अब जैसा है वैसे ठीक है, और दोस्त कहते हैं कि ठीक है नहीं है तो मेरे घर आ जाओ, तो एक दिन लोग खिला देंगे, दूसरे दिन खिला देंगे, तीसरे दिन कहेंगे क्या हमेशा के लिए कोई खिलाते हैं। Vinita hasn't been able to complete her education and that has turned her into a jaded 14-year-old. एक ही बहन इंटर कर पाई आपकी? बस। क्यों आप लोग क्यों नहीं कर पाए? कभी पूछा नहीं मम्मी पापा से? मम्मी पापा से पूछा तो एक बहन थी, जब ये सस्ता था तो मैं दीदी पढ़ गई थी, तो इसीलिए अब हमारे लोग के पास इतना पैसा भी हो तो पढ़े, और इतने में पापा पाइजे, फिर हम लोग कैसे पढ़े? वो यही बात है कि हम लोग पेट खा ले, खाना खा ले, यही बहुत है हमारे लिए। मैम जैसे एडमिशन के लिए पैसे हो जाए तो कॉपी किताबों के लिए पैसे नहीं, फिर सर चिल्लाते हैं कि कॉपी किताब नहीं लिए, एडमिशन करा ले तो कॉपी किताब भी होना चाहिए मैम, इसलिए नहीं पढ़ाई कर पाए। अभी छूट गई पढ़ाई। लास्ट कब गए थे स्कूल? मैम लास्ट बस 8वीं। नहीं कितना टाइम हो गया 8वीं पार किए? मैम अब 30 साल 9th था, अभी इस साल से 9th होना था। यस मैम। तो अब आप मुझे बताओ, आप बचपन से हो इस गांव में, आपका ज़िंदगी कैसी रही है? क्या आप जैसे YouTube वगैरह पे देखते हो YouTube? मैं मोबाइल ही नहीं है तो क्या? मोबाइल नहीं है तो किसी दोस्त का मोबाइल लेके कभी YouTube देखते हो? जी मैम देखते। जब मोबाइल नहीं घर में तो YouTube पे जब आप शहरों के वीडियो देखते हो तो क्या लगता है आपको? आप अपनी ज़िंदगी उस ज़िंदगी से कभी कंपेयर करते हो कभी? जी मैम लगता है, हमें भी लगता है कि हम उसी की तरह कुछ हम भी सीखते, उन्हीं की तरह रहते, और हम भी सोचते कि हमारे कोई सपने होते, हम भी पढ़ते लिखते, अच्छी से अपनी ज़िंदगी बिताते, अपने बाप माता की मदद करते। पर मैम ऐसा कहाँ है कि मदद करें, इतना हम लोग पैसे नहीं है, तो पैसे के लिए तो आगे बढ़ना पड़ता है, जब पैसा ही नहीं तो कैसे आगे बढ़ें, उनकी तरह कैसे अपने सपने चल जाएं। इसीलिए मैम सोचते कि क्या सीखें, तो इसीलिए मैम अपने के यही सोचते कि अपना गांव है तो ठीक ही है, अब क्या हम उनकी तरह थोड़ी हो सकते हैं, वो बड़े लोग का ही, हम लोग छोटे लोग, अब पैसा हो तो आगे सब चीज़ होनी चाहिए, यही सपना है बस, और क्या सोचते हम भी पढ़ लिखें, पर मैम पैसा होना चाहिए, बट एडमिशन कराने के लिए कॉपी किताब। कुछ और कभी सीखने की कोशिश करी है, टेलरिंग वगैरह? यस मैम। आप 14 के ही हो तो अभी तो कुछ नहीं होगा, उसके बाद हम सीखने की तो कोशिश की है, पर हम सोच रहे थे कि टेलर बन जाए, कंप्यूटर सीख लें, पर इसलिए मैम पैसे, और यही दिक्कतें हैं कि पैसे से नहीं, और कंप्यूटर सीखने जाओ तो पैसे भी देना पड़ता है। Welfare schemes continue to elude people due to corruption and caste-based discrimination. Those who have been able to avail them have achieved dignity of living, and those who have not, like Balram and his villagemen of Taura, are still 2 steps behind.
For the print, this is Shubhangi Mishra reporting from Unnao.